Today we will study about the excretion. So what is the process of excretion? We know that there are different type of metabolic wastes are produced in our body in the process of respiration, in the process of digestion, and these waste products are very harmful to our body. So what is the definition of excretion? एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो वी कैन राइट द डेफिनेशन हियर. Definition of excretion is removal of metabolic wastage or metabolic waste from our body is called excretion. Like removal of urea, uric acid, ammonia, carbon dioxide, etc. So these products like urea, uric acid, ammonia and carbon dioxide which are produced in our body, if they stay for a long time in our body, then they are very harmful to us. So there is a system in our body which help to remove these products from our body, and that system is known as excretory system. It means there is a well developed system in our body which take part in the process of excretion. So what are the different type of methods in the animals in which these products are excrete from our body? So we will study in this topic that in different type of animals how the process of excretion takes place. यानी जो different type आपके animals होते हैं उनमें ये excretion का process कैसे होता है. So we will make a chart here. Animals, excretory organ, and here metabolic waste. So first animal is amoeba, second is hydra, third is flat one, fourth is earthworm, fifth is insects,
and 6 is chordates. Means human beings. In the amoeba, you know that amoeba is a unicellular organism, and there is only a single cell. There is only a single cell that is present in the amoeba, and the process of excretion takes place from the body surface. From the body surface. It means in the amoeba, the process of excretion takes place from the body surface by the process of diffusion. By the process of diffusion, we have already studied about the process of diffusion. Diffusion is the process in which two or more particles of different substances mix on their own, mix together on their own. It means the intermixing of particles of different substances on their own is known as diffusion. And the main metabolic substance in the amoeba is carbon dioxide and ammonia. Carbon dioxide and ammonia. It means these are the excretory products or harmful products which are produced in the different processes in the cell of amoeba. ये जो अमीबा होता है उसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये दो प्रोडक्ट होते हैं जिनको शरीर के बाहर जो है निकाला जाता है वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में, और ये बॉडी सरफेस से होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सेकेंड इज हाइड्रा. In the hydra, the excretory organ means there is no excretory organ. This process, the process of excretion, takes place by the body surface. By the body surface. Again, body surface. The body surface of hydra take part in the process of excretion in the hydra by the process of diffusion. Here again, the process of excretion takes place in the hydra from the body surface through diffusion. And here again the metabolic waste are carbon dioxide and ammonia. यानी जैसे अमीबा में आपने देखा कि अमीबा में बॉडी सरफेस एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म, तो ये एक्सक्रीट होते हैं थ्रू बॉडी सरफेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. अमोनिया इज अ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, यू नो. ये अमोनिया जो होता है, ये स्पेशली अमोनिया जो होता है, ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली जो है उसमें जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए देयर इज नीड ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. तो ये हो गया आपका अमीबा और हाइड्रा. नेक्स्ट इज flatworm. So there is a excretory organ in the flatworm. Flatworm जो होता है, there are different type of these worms which are present in our intestine, in the intestine of pig. तो ये जो राउंड वर्म, कई प्रकार के वर्म होते हैं which are parasite, internal parasite होते हैं, और ये जो है इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है
वो होता है फ्लेम सेल्स, और इस सिस्टम को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया। तो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लैट वर्म में ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है कि नहीं? द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फ्लैट वर्म इज A, B, C, D. There are multiple choice. So you will select the protonephridia or flame cells. So there is mainly ammonia. It means in the flatworm the metabolic base is mainly ammonia. Next is earthworm. In the earthworm there are nephridia, which these are the tube-like structure, tubulous structure, and in the different part of the body there are many nephridia which take part in the excretion in the body of earthworm. यदि earthworm का जो body होता है तो इसमें अलग अलग पार्ट में ये नेफ्रिडिया होते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है, वहीं से एक्सक्रीशन होता रहता है कि नहीं? जैसे स्किन के थ्रू है कि नहीं, या यूरिथ्रा के थ्रू, तो या यूरिनल जो आपकी ओपनिंग है जहां से हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, या आपका जो लंग्स है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्थवर्म में यहाँ पे हर पार्ट में, हर बॉडी पार्ट में ये नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, और ये जो है अलग अलग पार्ट से ही एक्सक्रीशन का कार्य करते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इसमें जो मेन आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज यूरिया एंड अमोनिया। यूरिया एंड अमोनिया। इंसेक्ट्स, ये जो इंसेक्ट्स हैं इनमें मैलपीजियन सेल्स होती हैं, या ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं इनको। They perform the process of excretion in the insects, Malpighian cells or Malpighian tubules. There is uric acid. सबसे कम वाटर की नीड होती है यूरिक एसिड डिस्चार्ज करने के लिए। ये अमोनिया के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, यूरिया के लिए ना ज्यादा ना कम, यानी बीच में चाहिए, और सबसे कम किसमें चाहिए, यूरिक एसिड के लिए। लाइक द बर्ड्स, ये जो बर्ड्स होती हैं इनका भी जो डिस्चार्ज मटेरियल है, मेटाबॉलिक ये जो वेस्ट है वो भी यूरिक एसिड है। ये हमें ध्यान रखना है, कार्डेट्स में भी ध्यान रखना है। जो बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं एज अ पैलेट्स, यानी छोटी छोटी गोली के रूप में, और एज अ पेस्ट, एक पेस्ट के रूप में ये जो है यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और द मेटाबॉलिक वेस्ट व्हिच इज एक्रीटेड बाय द बर्ड इज यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू, लेकिन मेन जो डिस्चार्ज मटेरियल है वो क्या है, यूरिक एसिड है। ये इंसेक्ट्स में भी है
और बर्ड्स में भी है। बाकी जितने भी आपको वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग्स, तो ये इसमें जो आपका आप जानते हो कि यहाँ पे एक पूरा वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, जैसे आपका किडनी है कि नहीं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। तो ये मेन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। और जो यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज यूरिया। तो इस टेबल के द्वारा हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस एनिमल में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, और उसका जो एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन है जो कहाँ से एक्सक्रीशन होता है, कौन से ऑर्गन उसमें हेल्प करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि ये मल्टीजियन जो ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अमीबा, हाइड्रा, अर्थवर्म, इंसेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है ये मल्टीजियन ट्यूब्यूल्स या सेल्स कहाँ होती हैं, इंसेक्ट्स में। These are the excretory organ of the insects. कोई डाउट इसमें नहीं? तो ये इस चार्ट में ध्यान रखना है कि ये जो एनिमल्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं और उनका मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा है जो कि यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो मनुष्य में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, उसके मेन ऑर्गन क्या होते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ये होता है ये किससे किससे बना होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो वी कैन राइट हियर ह्यूमन excretory system consists of mainly kidney, ureters, urinary bladders and यूरेथ्रा। तो ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस, इसमें मुख्य ऑर्गन कौन कौन से हैं, मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो द मेन ऑर्गन इज किडनी। ये किडनी हमारा मेन ऑर्गन है, उसके साथ साथ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो इसका फिगर हम लोग देखेंगे, इसका फिगर कैसा होता है जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इसमें दो बीन शेप्ड किडनीज होती हैं। तो इसका फिगर आप बनाएंगे। पहले आप इसमें जो आपकी आर्टरीज हैं, जो मेन आर्टरीज और मेन वेन्स हैं उसको बनाएंगे। थोड़ा इजी वे में बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फिगर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपकी मेन एओर्टा है, जो मुख्य धमनी जिसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका फ्लो होता है। और ये आपका है इंफीरियर वेना केवा, जो आपकी मेन वेन्स है, जो मेन वेन है जिसमें जो
डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो ब्लड यहाँ पे फ्लो करता रहता है। अब यहाँ पे 2 पेयर्स आपकी, अरे सॉरी 1 पेयर जो आपकी किडनी है जो कि बीन शेप्ड होती है, उसको हम लोग बनाएंगे। अब यहां पे हमें ध्यान देना है कि जो ये आपका आर्टरी एओर्टा है, जो मेन आर्टरी है, इसमें से ये आपका ये आकर के जुड़ी हुई है इसे, और इसको हम लोग इस तरह दिखा देते हैं। अब ये जो आपकी वेन्स है ये भी यहां पे जुड़ी हुई है। अब ये जो आपका जो ये एओर्टा से जो यहाँ पे आर्टरी गई हुई है किडनी में, ये जो आपका लेफ्ट किडनी हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी। और ये हो गया रीनल वेन, ये आपका हो गया यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, and this is urethra. This is the diagram of human excretory system. इसमें ये आपका एओर्टा, ये इंफीरियर वेना केवा, ये मेन आर्टरी, मेन वेन, और यहाँ पे लेफ्ट और ये राइट किडनी, यानी एक पेयर आपका किडनी का है, और ये इस रीनल आर्टरी रीनल वेन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये जो आपका यूरेटर है जो कि जो किडनी फॉर्म करती है यूरिया, इसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पे ये आपका कलेक्ट होता है और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस फिगर को आप बना लें, और उसके बाद हम लोग इसमें एक एक पार्ट के बारे में, क्योंकि जो ये आपका किडनी है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और एक एक आर्गन का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिटेल में स्टडी करेंगे।